Good morning, students. Chapter number 3, Hornbill, 11th Standard, English FL. The title is Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Discovering Tut. Tut is a short name of Tutankhamun. Tutankhamun was the youngest, or you can say he is considered the youngest pharaoh of his time, nearly 3,300 years back. Tutankhamun existed. Yes, we are talking about the time 3,300 years back. In ancient Egypt, the rulers or the kings were called pharaoh, or you can say pharaoh. Okay, mostly people call it or pronounce it pharaoh. So the pharaohs were the kings or the rulers in the ancient Egypt, and they were considered very rich. They had all kinds of rich things. And what do you mean by this word saga? Saga is a long story about an event over a period of many years. कई सालों से एक स्टोरी चलती आ रही है. थोड़े थोड़े इवेंट उसमें और लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं. तो द सागा कंटिन्यूज मीन्स दिस स्टोरी हैज़ नॉट एवर एंडेड yet. It's just going on and on. Means every time we find something related to king or the pharaoh Tut means Tutankhamun, और उसकी स्टोरी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स और जुड़ते जा रहे हैं. Let me tell you that Tut was the youngest pharaoh and he died when he was a teenager. Teenager means when he was between 13 and 19. Mostly people guess or people speculate that he died at the age of 18 or 19. Sorry. These are the expressions, but we will come to know or will infer their meaning from the context. Context means here situation or the circumstances, because these phrases will not be cannot be found in the dictionary. You can't refer to these phrases. So some phrases, not only some phrases, but there are many phrases which have actually been, you can say, used or invented according to the context. Okay, but for only reading, let me read: forensic reconstruction, scudded across, casket grey, resurrection, funerary treasures, circumvented, computed, tomography, eerie details or eerie detail. Now this picture is of King Tut, Tutankhamun. Some people pronounce this word as Tut because his full name is Tutankhamun. So from Tut they pronounce it Tut, but I pronounce it Tut. Okay, so you can pronounce it as you want. So this is the picture of Tutankhamun. You can see there is a crown on his head, and he looks younger. So why are we going to read this chapter, and why is this chapter about Tutankhamun? What is the speciality of this Tutankhamun or this chapter? Well,
some points are there that you must pay attention to. The first point is he was a teenager. The second point is that he was made the ruler or the pharaoh when he was 9 years old. So you can imagine when a child is made a king, okay, so how would he have ruled? So he almost ruled for 10 or you can say 9 years in his life as a pharaoh. And then when his body was found, his body or you can say his mummy means you understand, okay, ancient Egypt में मम्मी रखा करते थे लोग. जब भी कोई रॉयल पर्सन की डेथ होती थी, वेदर इट इज़ फ़ैरो और एनी रॉयल मेंबर या किसी और भी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, तो उनके लिए दे एक्चुअली मेड स्पेस, रूम, एक सेमेट्री जो होती थी वहाँ पर वो रूम जैसा बनाते थे, स्पेस होता था काफ़ी, और रूम के बीचों बीच दे वुड कीप द टूम, कब्र जो होती थी वो रखते थे. और जैसे ये रूम है, स्पेस है, बीच में कब्र रखी हुई है. एंड और भी मैं आपको इस स्पेशलिटी बताता हूँ उस चैप्टर में क्यों इसे रीड करना चाहिए. बिकॉज ये जो टूम है वो बहुत बड़ी साइज़ का होता है, कब्र, रॉयल जितने भी पर्सन्स की डेथ हुई उनके लिए. और ये ज़्यादातर मतलब प्रेशियस मेटल से बने होते थे, ज़्यादातर गोल्ड से. और ये टट का तो टूम 3 लेयर्ड था, मतलब 3 नेस्टेड था. एक लिड के ऊपर दूसरा ढक्कन, उसके बाद तीसरा ढक्कन, मतलब लिड, कॉफ़िन का जो ढक्कन होता है ना, तो ऐसे 3 ऊपर से लेयर थे. उसके बाद भी अगर आप टट को फाइंड आउट कर लेते हो तो भी टट के फेस के ऊपर, फेस ही नहीं पूरे हेड के ऊपर एक गिल्डेड फेस बना हुआ था. गिल्डेड फेस का मतलब टट के फेस की एक तरह से रेप्लिका कॉपी की बनाई हुई थी, और वो भी सोने से, गोल्ड से. गिल्डेड मतलब मेड ऑफ गोल्ड. उसके बाद यू कुड व्हेन यू जस्ट रिमूव दैट गिल्डेड फेस, देन यू फाइंड टट्स रियल फेस, रियल बॉडी. तो ये स्पेशलिटी. और यही नहीं, देयर वर सो मैनी थिंग्स अराउंड दिस टूम. बहुत सारी चीज़ें थी टट की फेवरेट चीज़ें, जो फॉर एग्जांपल कुछ गेम, बोर्ड गेम्स, और इसके अलावा हिज फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स वाज रेज़र. तो ये सब चीज़ें रखी हुई थी. उसके शूज़ जो सोने के बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें सोने की बनी हुई थी. और इतनी चीज़ें मिली वहाँ से 1922 में कि यू कांट इमेजिन. एंड यू कैन से दैट इट वाज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यू कैन से. सबसे बड़ा रॉयल कलेक्शन जो इजिप्ट का था वो यही था. किंग टट के पास जो भी कुछ मिला वो इतना ज़्यादा कलेक्शन था कि यू कैन से इट वाज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कलेक्शन एवर फाउंड इन द हिस्ट्री. ठीक है, इसलिए हम लोग रीड करने जा रहे हैं. और सबसे मेन पॉइंट अब आपको बताता रहा हूँ मैं. सबसे मेन पॉइंट ये है कि नोबडी नोज, आई मीन एग्जैक्टली व्हेन टट वाज एक्चुअली. ये तो हमको पता है 3300 ईयर्स बैक ही डाइड. अब ये भी कैसे पता वो मालूम पड़ जाएगा, पर मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ. कि एक पॉइंट ये है कि हाउ डिड ही डाई, ये किसी को नहीं मालूम. एंड इफ़ ही डाइड नेचुरली, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था. एंड इफ़ ही वॉज किल्ड, सो हु किल्ड हिम, किसने उसको मारा और किस रीज़न से, व्हाट वाज द रीज़न. तो बहुत सारे स्पेक्यूलेशन है. जब 1922 में इसको डिस्कवर किया कार्टर ने, तब उसने उतना नहीं सोचा था. ही जस्ट फेल्ट कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ दिस pharaoh in the history, so he started searching about. लेकिन 80 years के बाद, यहाँ पे लिखा है 80 years, सिटी स्कैन जब किया गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जब किया गया, तब और भी इसके मतलब और भी रेवलेशन हुए, मतलब और भी चीज़ें रिवील होके बाहर आई. सबसे पहले तो मालूम पड़ा कि इसके हेड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट
दे सॉ दैट पैर में इंजरी हुई थी एंड हेड में भी, स्कल में पीछे की तरफ. तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव डाइड इन अ बैटल, या तो किसी ने एक तरह से एम्बुश करके इसको या चीट करके मारा होगा, इस तरह से बहुत सारे स्पेकुलेशन है. तो अभी भी ये सब जो सागा कंटिन्यूज़ का मतलब यही है कि अभी भी पूरी तरह से कंक्लूजन नहीं मिला है कि हाउ डिड टट डाई, कैसे उसकी डेथ हुई. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. He was just a teenager when he died. Okay, that you know. The last heir. How will you pronounce this word? H-E-I-R. You will pronounce as you pronounce heir. Okay. H is silent. So the way you pronounce air, you will have to pronounce the same this word. So heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. ये ऐसी फैमिली से था ना जिस फैमिली ने इजिप्ट को रूल किया था. मतलब फैमिली का जो भी एयर आता था, वारिस जो होता था, एयर का मतलब वारिस. ओके, द पर्सन हु हैज़ अ लीगल राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिज. ऑब्वियसली फादर अपने जो भी उसका जो एयर होता है वो उसका बेटा ही होता है, तो फादर अपने बेटे को जो भी देता है वो, ठीक है, तो उस हिसाब से वो वारिस है. ठीक है, तो ही वॉज फ्रॉम अ फैमिली, फ्रॉम अ पावरफुल फैमिली, जिस फैमिली ने वन बाय वन, मतलब उस फैमिली के मेंबर्स ने वन बाय वन इजिप्ट को रूल किया एंड इट्स एम्पायर, और पूरे एम्पायर को रूल किया फॉर सेंचुरीज. सेंचुरीज तक रूल किया. ये उस फैमिली से बिलोंग करता था. ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. ही वॉज लेड, this is passive voice, he was laid is the it is the second or third form of lay means लिटा दिया, सुला दिया और उसको वहाँ रख दिया. तो he was laid, उसको लिटा दिया गया, to rest, ताकि वो रेस्ट करे. means the writer is talking about his the time after his डेथ के बाद ऑब्वियसली डेड बॉडी कैसी दिखती है, जिससे वो आराम कर रही हो. ठीक है, तो ये फिगरेटिवली यूज़ किया है. डेथ के बाद कोई कैसे आराम कर सकता है, अब वो उसको ही मालूम. तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड. तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, ये तो मालूम पड़ गया, आराम करने के लिए उसको वहाँ लिटा दिया गया. कहाँ? तो उसके टूम में, कब्र में. लेकिन लेडन विद गोल्ड, लेडन का मतलब heavily loaded with gold. उस इतना सोना भर दिया गया उसके आसपास, उसके ऊपर इतना सोना यूज़ किया गया कि मतलब लोग सरप्राइज्ड हो गए एकदम. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और इवेंचुअली का मतलब एट लास्ट ऑल द पीपल फॉरगॉट. ठीक है, सब भूल गए. और ये शायद पता भी नहीं चलता किसी को अगर ये 1922 में इसको फिर से डिस्कवर कोई नहीं करता तो. एंड हु डिस्कवर्ड किंग टट? कार्टर. इसका फुल नेम था हॉवर्ड कार्टर. इसके बारे में भी हम चैप्टर में देख लेते हैं क्योंकि एक पैराग्राफ दिया है. ठीक है, तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम मीन्स कब्र, इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड, जब से डिस्कवरी हुई है 1922 में, तब से मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड. स्पेक्यूलेटेड मीन्स टू फॉर्म, speculate means to form an opinion about something without knowing all details or facts. आपको पता ही ना हो डिटेल्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, पर आपने स्पेक्यूलेशन बना डाली. ठीक है, कोई बेस नहीं होता है बट थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होता है और आपने क्या कर दिया, स्पेक्यूलेशन, यानी अंदाज़ा लगाया. या तो अटकलें होती है ना कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा. तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दिए. ठीक है, स्पेक्यूलेट किया अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, क्या हुआ होगा उसके साथ. विद मर्डर
बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और उस स्पेक्यूलेशन में सबसे बड़ा स्पेक्यूलेशन जो ज़्यादातर लोग स्पेक्यूलेट क्या करते थे कि उसका मर्डर ही हुआ होगा, बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और यही सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती थी क्योंकि ही वॉज यंग एंड ही कुड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर थ्रू आउट हिज लाइफ। बहुत लंबा टाइम वो खींच सकता था रूल करने में। और हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, ये भी मैं एक स्पेक्यूलेशन ही दे रहा हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, बट बेस्ड ऑन हिज CT scan we'll come to know and we can just have an opinion. So now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. अब 1922 के बाद 80 साल लगे, ठीक है, जब उसको टूम में से निकाला गया। ठीक है, पहले भी निकाला गया था, 1922 में भी उसको टूम में से निकाला गया था। ठीक है, लेकिन फिर उसको रख दिया गया। और वहाँ पे तो ये जहाँ पे रखा गया है वो पूरी जगह वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानी जाती है। वैली ऑफ किंग्स का मतलब ये नाम पड़ा है, और उसका मतलब है, उसका जो रियल नेम है वो एक्चुअली वो है इजिप्ट की सेमेट्री, दी इजिप्शियन सेमेट्री। सेमेट्री मतलब शमशान। ठीक है, तो वो वैली टाइप की है वो जगह जहाँ पे जो भी रॉयल पर्सन की डेथ होती थी तो वहाँ पे ममीफिकेशन करके उनको वहाँ पे रखा जाता था। ओके, टट वॉज, ओके, ये पूरी लाइन एक साथ है। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टट हैज़ अंडरगॉन अ CT स्कैन। 80 साल, जब से 1922 में डिस्कवरी हुई इसकी, तब से 80 साल लग गए उसको CT स्कैन में जाने के लिए। तो अब जाकर CT स्कैन हुआ, दैट ऑफर, CT स्कैन ने ऑफ़र किए न्यू क्लूज़, और भी क्लूज़ पता चले। पहले तो लोगों को उतना CT स्कैन के बिना उतना था इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अब और मालूम पड़ने लगा। CT स्कैन में क्या होता है, पूरी बॉडी को 3D या 3 डायमेंशनल वे में उसको स्कैन किया जाता है, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक क्लोजली। आपको जैसे भी 3 डायमेंशनल वेज में आपको देखना हो देख सकते हैं, हर पूरी एनाटॉमी आप देख सकते हैं, और वो भी एकदम माइन्यूटली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लूज़ मिले अबाउट हिज डेथ एंड अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा। और प्रिसाइज डेटा मिला, एकदम प्रिसाइज मतलब एकदम आप कह सकते हैं कि क्लियर एंड एक्यूरेट। ठीक है, प्रिसाइज मतलब क्लियर एंड एक्यूरेट डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, पहले तो क्या जो भी डेटा मिले थे थोड़े आप कह सकते थे कि यू कैन बी श्योर कि वो डेटा एकदम सही हो, लेकिन CT स्कैन हुआ तो क्योंकि जो बॉडी रह गई थी, बची हुई थी, उसमें जो बोन्स बचे हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर से इनको एक प्रिसाइज डेटा मिला, क्लियर एंड एक्यूरेट, फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। अब इस डेटा के बेस पर ये एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते थे, किसका, ऑफ द बॉयश फ़ैरो। ये जो फ़ैरो था, किंग रूलर, वो क्या था, बॉयश था, मतलब अभी भी वो मैन नहीं था, ही वॉज अ बॉय, टीनेजर था। तो उसका फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हुआ। फॉरेंसिक का मतलब सबसे पहले आपने सुना होगा, फॉरेंसिक मीन्स कभी भी कोई क्राइम होता है तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होता है और वो एक तरह से टेस्ट होती है, उसको फॉरेंसिक कहते हैं। तो यू कैन से फॉरेंसिक मीन्स कनेक्टेड विद द साइंटिफिक टेस्ट टू सॉल्व अ क्राइम। क्राइम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आप लेबोरेटरी का यूज़ करते हैं और जितना हो सके आप साइंटिफिकली टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितना क्राइम सॉल्व किया जा सकता है। एंड रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, क्राइम से रिलेटेड जो भी हमने टेस्ट किए, जो भी टेस्ट के बेस पर जो हमने फिर से इंफॉर्मेशन तैयार की, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन उसको बोलते हैं। ऑब्वियसली रिकन्स्ट्रक्शन कब होता है, व्हेन समथिंग इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, देन यू बिल्ड इट अगेन। पहले से क्या हो गई थी, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय या डैमेज हो चुकी थी, तो आपने उसको क्या किया, यू बिल्ट इट अगेन।
तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं फॉरेन डैमेज क्या हुआ था? तो ऑब्वियसली डैमेज हुआ था, आपको बाद में मालूम पड़ेगा। उसकी बॉडी जब 1922 में डिस्कवर्ड हुई थी ममी, तब उस ममी के साथ कार्टर ने थोड़ी छेड़खानी की थी। ओके, बिकॉज ही वांटेड टू टेक द बॉडी आउट टू हैव मोर रिसर्च एंड थोड़ी बहुत और भी प्रॉब्लम्स थी, तो बॉडी के साथ काफ़ी छेड़खानी हुई। उससे क्या हुआ कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं मिल पाई थी उस टाइम। लेकिन अब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, अब जाकर सही डेटा मिला। ठीक है, ओके।